Greetings. Welcome to State of the Union for e-commerce, where we take serial entrepreneurs, business experts, and digital marketers. So the mistakes that they have experienced in their ventures can be avoided by you, and you can grow your business by 10x. So today we have a very special guest, Shahryar Khan from Karachi, and he is a digital marketer with 14 years of digital marketing experience. आज हम इनके लाइफ एक्सपीरियंस से सीखेंगे और इनकी गलतियों से इनकी मिस्टेक से सीखेंगे एंड हाउ यू कैन बिकम अ डिजिटल मार्केटर लाइक हिम लेट्स लर्न फ्रॉम हिम वेलकम शरियर भाई टू द शो बहुत शुक्रिया आपका बिलाल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एक्चुअली इट्स एन ऑनर फॉर मी okay Shahryar bhai do share with us how was your background and how did you get started with the digital marketing and what was the thing that inspired you to get into the digital marketing. Okay, like that was an accidental thing, like pure accidental thing. I know nothing about like 14 years back when I started my first job that was based in a B2B based firm in Karachi named the Street Key. So I started my career from there actually. Because what happened, like I was looking for the job, like I've graduated and like I was looking for a job and I know nothing about digital marketing. And suddenly receive a call from that company and like they questioned me some things like, do you know about this thing? Do you know about this? And I was totally blank actually. And I guess at that time, like I was talking about, like that was based back in 2007. At that time, you won't find much digital marketers. Yep. Right now, you have a lot of people like who are doing it. But at that time, like they were rare actually. That was a rare breed to find actually. So उस जमाने में जब मुझे कॉल आती है he asked me a few questions he said के like आपने ये किया भाई क्या हुआ ऐसा नहीं what is this मतलब मैंने उससे उल्टा पूछा कि ये होता क्या है actually so he was like why you have applied I told him that like I like fulfilled the basic criteria of your job. That's why I applied. So he told me, ठीक है, since you have applied, so ठीक है आप आ जाना इस डेट को और ये सारी चीजें और थोड़ा सा पढ़ लेना ये इन चीजों के बारे में जो मैंने पूछी. Then I was good as I was looking for a job and I got it from his like tone ke they are looking for some people like they are not getting it उनको मिल नहीं रहा है. So मैंने उस जमाने में एक सर्च इंजन होता था cyrus.com that was a scientific search engine आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह मिल जाते थे. I don't know अभी भी वो है या नहीं है. मैं गया मैंने एसईओ से रिलेटेड वो जॉब थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कीवर्ड मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया. That was the day or that was the time my interest started developing in that field. I was like, yeah, wow, this is an interesting thing actually. So मैंने वो पूरा एक कोर्स पढ़ा हुआ था I don't know यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का किसका वो मैंने पूरा पढ़ लिया ना. वो बहुत कम था उस जमाने में एसईओ wasn't like this evolved you can say. बड़ा बेसिक सा था उसमें बहुत ही मतलब बेसिक से मतलब क्या इतना ज्यादा इन डेप्थ उसमें चीजें नहीं थी और उस जमाने में होती भी नहीं थी. ठीक है तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. Then I went for that job interview. The manager started asking me question. I told him जो भी मैंने उनको like his first question was actually मुझे अभी तक वो याद है कि तुम कब से जानते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. And I told him I was a very blunt guy at that time. I was a very straightforward person. Still I am a straightforward person. So he told me कब से जानते हो. I told him clearly like जब से आपकी कॉल आई है जब से. So it was so he was like he felt a little disappointed actually said okay इसको पता ही नहीं है कुछ तो चलो ठीक है जो भी पढ़ा है आप बताना शुरू करो. Then I started like telling him all the things what I have read that like till then and he started cross questioning me. So then like when the interview was finished he told me yeah you know कि तुम्हें बहुत कुछ पता है but तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें बहुत कुछ पता है. So that was the day actually. So again as I said that was accidental. But it was a good start, okay. You have done a Yeah. really good job because the thing is, even though you are not eligible at that time for that digital marketing job, but you struggle for it. That's what your commitment. I love that thing, mashallah. Absolutely. Thank you. So, digital marketing, may you have spent around 14 years, and how was your experience? How do you define digital marketing today in 2021? Yeah, digital in 2021, like it has evolved a lot. Like अक्सर अगर आप पढ़ें कुछ
3-4 साल पहले से मैंने जो देखना शुरू किया कि a lot of companies they are cutting down their like traditional marketing budget and investing it into digital marketing. Like Pepsi ने अपने सुपर बोल के एड्स रिड्यूस किए थे आज से कुछ साल पहले, इसी तरह से और बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि वो अपने वहां से बजट रिड्यूस करें और इस तरफ आए, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग पाकिस्तान स्पेशली आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। बाहर मुल्कों में फिर भी कुछ तरह से ट्रैकेबल है, लेकिन पाकिस्तान में आप बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो है उस तरह के मीडियम्स नहीं है कि आप उनको ट्रैक करें। आपका नॉर्मल केबल टीवी चल रहा होता है तो आप उसको बिल्कुल भी जो आप किसी डिकोडर के थ्रू उस तरह से वो नहीं आ रही होती, आप कितने यूजर्स हैं दैट्स एन एस्टिमेट एक्चुअली। इन डिजिटल मार्केटिंग मतलब what are you spending and what are you earning on, like everything is tracked. So you have got like आपने 1 रुपया लगाया, 100 रुपए लगाए तो आपके पास उसके रिटर्न में ये चीज आई है। जैसे मैंने बताया कि पहले like आज से 2007 में even the SEO and digital marketing wasn't that evolved. लोग बहुत सारे जो है spammy tactics यूज करते थे, black hat tactics यूज करते थे और बड़े आराम से जो है रैंकिंग्स अचीव हो जाती थी। अब वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है वो सारी चीजें। सर्च इंजन्स हैव इवॉल्व्ड, ठीक है, उनके क्योंकि वो सारी की सारी उन्होंने जितनी टेक्निक्स थी, जितने जी फ्रॉड क्लिक फ्रॉड के जितनी चीजें थी वो काफी हद तक कैटर कर चुके हैं ये सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें बड़ी हद तक इवॉल्व हो चुकी हैं। जो ज्यादातर जो फ्रॉड के चीजें थी, फ्रॉड एलिमेंट्स थे या स्पैमी एलिमेंट्स थे, वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। इसीलिए लोग ज्यादातर इस तरफ इन्वेस्ट करें क्योंकि इट्स ट्रैकेबल। तो द ब्यूटी ऑफ दैट थिंग इज ट्रैकेबल। आप स्ट्रेटेजी कहीं पे भी आपकी जो अगर खराब हो रही है, नहीं आ रहा, ठीक है, आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है आपको पूरा एड एक नया बनाना पड़ेगा टीवी के लिए या कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट्स अ लिटिल इजियर, यूजर फ्रेंडली, ट्रैकेबल। तो इस तरह की चीजें। दो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन पाकिस्तान स्पेशली दे हैव लाइक a huge footfall, still that has a huge footfall, but again like worldwide digital marketing has evolved a lot actually. Absolutely, truly agree with it. Or traditional marketing is way expensive than digital marketing, you know. Absolutely, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अगर आपका कोई छोटा रेस्टोरेंट है वो सोच भी नहीं सकता कि वो टीवी पे एड्स चला सकता है या कुछ इस तरह की चीजें, बट वो गूगल और फेसबुक और लिंक्डइन बाकी जो भी उनकी नीश मार्केट के हिसाब से जो भी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है उसमें बड़े आराम से ऐड चला सकते हैं और इवन खुद भी चला सकते हैं। अगर उन्हें कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी एक्सपर्ट को हायर करें, ठीक है, एक्सपर्ट कुछ पैसे उनके बचा लेगा, उन्हें अगर नहीं भी आता, नहीं हायर करना, वो खुद भी चला सकते हैं उनके, क्योंकि गूगल के बाकी प्लेटफॉर्म्स के इस हद तक वो है चीजें, उन्होंने अपने ट्यूटोरियल्स भी दिए हैं, सब कुछ है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ना चाह के खुद कर सकते हैं, ठीक है। लाइक नील पटेल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इन दिस फील्ड कि वो उसका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था कि उसको जितने डिजिटल मार्केटर्स मिले थे उनको नहीं पसंद आए तो उसने खुद से सीखी और आज वो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है हिमसेल्फ। So this is how easy it is, and not only easy, actually it is entertaining. एक पता नहीं क्यों इसमें एक मजा है शायद। जिनका जुनून है ना, मतलब इसको कहते हैं लाइक जुनून, बिल्कुल, जिनके अंदर एक्साइटमेंट है, जिनको दे हैव यू नो कि वी हैव टू डू इट ऑन एनी कॉस्ट, दे आर कमिटेड टू देयर विजन, देयर मिशन, उनके लिए तो बहुत मजे की चीज है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अच्छा शहरियार भाई, आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की होंगी अपने वेंचर के अंदर। डू शेयर द 3 मिस्टेक्स that you want other businesses don't make in their ventures, और वो costly mistakes को avoid कर सके। What are those 3? सबसे बड़ी यही होती है कि आप बहुत हद तक चीजों को रिफाइन करने या परफेक्शन की तरफ ना जाएं इन दी स्टार्ट। ठीक है, आप कोई भी चीज, अगर कोई भी अपना वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लेट सपोज अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, उस पर चीजें डली हुई है, वो सेल कर रहा है, लोगों को आसानी से मिल रही है। सेकेंड थिंग इज डू योर प्रॉपर रिसर्च। ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सीजनल बिजनेस ना हो, क्योंकि सीजनल बिजनेसेस में क्या होगा, ठीक है, वो अभी चल रहा है, मे बी आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उस बिजनेस में पैसा लगा दिया। लाइक अक्सर लोगों ने, आपने देखा होगा कोविड के दिनों में उन्होंने मास्क खरीद के मंगा लिया और वो उन्होंने बहुत पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, वो सीजनल बिजनेस था, इस तरह की चीजें आई कि वो बिका, लेकिन टाइम बीइंग आप देखें कि वो पहले 1000 रुपए में जो मास्क मिल रहा था या जो चीजें थी, वो मतलब वो 80-100 रुपए पे आ गई, ठीक है ना। तो अक्सर लोगों ने, तो जिन्होंने खरीदा है, दे वांटेड कि उनको उनका पैसा भी मिल जाए। तो आप कोई इस तरह की चीज में इन्वेस्ट करें जिसका मतलब हो, लाइक उसकी जो है साल साल वो चलने वाला बिजनेस हो, या अगर नहीं भी है लाइक, लेकिन आपको, आप उस चीज में अपने आप को जो है सालों तक रख सकें, क्योंकि जरूरी नहीं आप पहले दिन से कमा रहे हैं।
ठीक है, दराज डॉट पी के, फूड पैंडा, ये सारी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। इन्होंने बड़े सालों तक जो ये लॉसेस में गए, लेकिन इतने बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट थे या इतने बड़े प्लेयर्स थे कि दे कैन सर्वाइव एक्चुअली। सो उन्होंने उस हद तक अपने आप को रहा, ठीक है वो लॉसेस में भी जा रहे थे लेकिन उन्होंने उसको खत्म नहीं किया। फिर कुछ साल के बाद जब वो प्रॉफिटेबल हुए तो उनके मुकाबले का कोई प्लेयर नहीं है अब, ठीक है। तो इस तरह से कि आप लॉन्च करें अपने आप को, प्रॉपर रिसर्च करें, और जो तीसरी चीज कि आप फील्ड में जाए पहले दिन से रेवेन्यू एक्सपेक्ट ना करें उस चीज में, ठीक है। इट टेक्स टाइम एक्चुअली। एब्सोल्युटली इसके अंदर एक चीज मैं भी इंक्लूड करना चाहूंगा, ट्रूली एग्री विद दिस, कि जो चीज एक दफा स्टार्ट होती है उसको एक दफा उरूज पे पहुंचना है, और बेशक वो आपने स्टार्ट कर लिया है, दैट्स अ स्मॉल थिंग, आपके लिए एक छोटा स्टार्टअप है, एंड यू थिंक कि ये 1 साल 2 साल मुझे रेवेन्यू नहीं दे रहा। अब दराज की एग्जांपल ले लें, फूड पांडा की ले लें, ये स्टार्ट्स के अंदर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे थे, बट दे स्टिल स्ट्रगल्स बिकॉज लॉसेस में थे। हमें इस्लाम खुद कहता है कि आपने कुछ एक शुरू किया, उसको हर चीज को अरूज है, उसको जवाल है, तो उसको अरूज पे जाने जाना, वी कांट रिग्रेट दैट। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। देखो ऐसे हो रहा, आपकी मेहनत कभी अल्लाह ताला जाया नहीं करता। बिल्कुल, सो ट्रू, सो ट्रू। इसके अंदर एक रिसर्च का भी अपने टॉपिक छेड़ दिया। पाकिस्तान के अंदर व्हाट आई हैव सीन, पीपल लैक रिसर्च, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल होते हैं, और रिसर्च प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल योर वेंचर। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक अभी भी अगर आप देख लें ई कॉमर्स की, अगर मैं फील्ड की बात करता हूँ, देखिए बहुत सारे आपने देखा होगा कि रोजाना की बेसिस पे बहुत सारे शॉपिंग स्टोर्स आ रहे हैं, लेकिन वो compete नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्टोर है ई कॉमर्स जो क्रेडिबल है स्टिल, मतलब उससे कितने भी नेगेटिव रिव्यूज हो बट स्टिल पीपल आर शॉपिंग फ्रॉम दैट ई कॉमर्स स्टोर। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई, इवन टीसीएस जैसी कंपनी भी आई, ठीक है, जिसकी अपनी पहले से सप्लाई चेन थी, पूरा का पूरा उनके साथ लॉजिस्टिक्स था पहले से, लेकिन वो भी उसको कम्पीट नहीं कर पाए। इवन दराज ने अपना लॉजिस्टिक्स उसके बाद शुरू किया, अपने जो जितनी भी ये कोरियर वाली चीजें थी उसके बहुत बाद शुरू किए, लेकिन उनको एक एडवांटेज था कि वो बहुत पहले से थे उस फील्ड में और उनके पास वो चीज थी, उसको केटर कर सकते थे। लेकिन आई डोंट नो कि क्या वजह थी कि वो उसको उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाए। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि मुझे डेली बेसिस पर देखता हूँ कि बहुत नए नए स्टोर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन मतलब वो कम्पीट नहीं कर पा रहे। मतलब कुछ हद तक वो सरवाइव करते हैं, कुछ हद तक वो आते हैं, लेकिन उसके बाद वो बंद हो जाता है, आपको उनका नाम भी सुनने को नहीं मिलता। तो वही इवन वही वाली बात है ना कि आप अगर शायद उनको उसका पोटेंशियल नहीं पता या वो एक्सीडेंटली आ गए तो उस चीज में, लाइक ऑर्किड की एग्जांपल उस फेज में मैं देना चाहूंगा कि ऑर्किड सबसे पहला सोशल मीडियम था, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था अगर आप देखें उस जमाने के हिसाब से। लेकिन फेसबुक के आने के बाद मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं था गूगल शायद उसमें, ठीक है। फेसबुक आया, इस तरह की चीजें आई, फेसबुक वॉज वेरी सक्सेसफुल, लेकिन ऑर्किड उससे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था पहले, लेकिन उन्होंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, पता नहीं शायद उनको उस मार्केट समझ नहीं आई थी या उनको इसका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अगेन तो वो बंद हो गया। यही सेम गोज विद एक और था ना वो बड़ा मशहूर जो उसने अपना मैं खैर नाम भूल गया हूँ, तो माई करके आ गया सर, फॉरगॉट द नेम। तो इसी तरह का एक और बड़ा मशहूर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया था, वो भी फेसबुक से पहले बहुत मशहूर था, बहुत पॉपुलर था, माई स्पेस, ठीक है। तो वो लेकिन अगेन उन्होंने अपना रिवैम्प्ड वर्जन भी लॉन्च किया था कुछ साल बाद, नहीं चल पाए क्योंकि रीजन के उस वक्त तक जो सोशल मीडिया जो ये फेसबुक वगैरह जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे वो मार्केट कैप्चर कर चुके थे और फिर उनके पास कोई चांस नहीं रहा था ये सारी चीजें। तो आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करें उस चीज को, और एक चीज के जो भी आप कर रहे हैं ना उसको छोड़े नहीं, अगर आपका वो पैशनेट है तो आप करें, वरना करें नहीं, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम है इसके अगर आप आए कुछ अरसे के लिए, ज्यादातर लोग आते हैं शायद पैसा कमाने के लिए कि ठीक है दराज इतना कमा रहा है या फला करीम इतना कमा रहा है, ठीक है। आप करीम की एग्जाम्पल बिगेस्ट, जब करीम लॉन्च हुआ था उसके साथ वो यू राइड और पता नहीं कौन कौन सी हर दूसरे दिन एक राइड की वो आती थी एप्लीकेशन, कोई भी नहीं है। तो आप जो भी काम करना चाहें आप उसको लग के करें, ठीक है ना। आप उसका पहले प्रॉपर से एक स्टडी फीजिबिलिटी बनाएं कि आपको किस हद तक उसको लेके जा सकते हैं, आपको छोटे छोटे गोल सेट करें उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, ताकि उनको अचीव करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रातों रात उसको जो अचीव कर पाए, क्योंकि करीम ने भी उबर को टक्कर दी थी एक्चुअली। उबर वाज लाइक जो भी है उसको बाद में उसने उबर ने खरीद लिया है व्हाटएवर, लेकिन इट वाज अ सक्सेस स्टोरी, ठीक है। उसने अपने आप को इस हद तक पहुंचाया कि उसको उन्होंने खरीदा बाद में, एज अ कंपटीशन ट्रीट किया।
जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर लेट मी शेयर विद यू, आई हैव डन आल्सो मल्टीपल वेंचर्स, आई एम आल्सो अ डिजिटल मार्केटर एज वेल। एंड इसके अंदर ऐसे ही है, मैं इसकी मिसाल इस तरीके से शहरियार भाई रिलेट करता हूँ कि हम ये कहते हैं कि शादी से पहले जिंदगी और है, शादी के बाद डिफरेंट है। तो बिजनेस के अंदर भी यही है कि बिजनेस स्टार्ट में आपका कुछ और होता है, जब आप शुरू कर लेते हैं उसकी जिंदगी और है। एब्सोल्युटली ट्रूली एग्री। बहुत हार्ड टाइम होता है, स्टार्ट के अंदर यू आर स्टार्टिंग अ न्यू थिंग विद अ फुल एक्साइटमेंट एंड थिंग्स, बट जब आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा होता है एंड यू आर स्टिल गोइंग इनटू लॉसेस एंड स्ट्रेस, वो आपको चीजें है ना काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। बट इन केस अगर आप छोड़ के कोई और वेंचर शुरू कर लेते हो तो आपको चीजें बहुत याद आती हैं कि वो मैं बेशक करता था लेकिन मजा मुझे बहुत आता था। बेशक मैंने लॉसेस में जाता था, लॉस था मेरा, लेकिन मुझे मजा बहुत आता था क्योंकि व्हाई यू लर्न एवरीथिंग अ न्यू थिंग फ्रॉम इट। माशाल्लाह, थैंक्स सो मच फॉर शेयरिंग, आई होप दिस टिप बिल्कुल ऐसे ही विल। है, बिल्कुल, क्योंकि आप कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर यू। ठीक है, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर यू। ठीक है, आपको नहीं पता कि ठीक है किस तरह से कोई आपकी बिजनेस की पहली वेबसाइट बनानी है, पहला कस्टमर कैसे लेके आना है, लेकिन जो टेक्निकल गाय ठीक है, लेकिन आप फिर उसमें बिजनेस नॉलेज आ जाती है। अगर आप बिजनेस से गाय बंदे हैं, ठीक है, तो आपको उसमें टेक्निकल नॉलेज आ जाती है कि वेबसाइट किस तरह बनानी है, लोगों को किस तरह लेकर आना है, बात किस तरह, ठीक है, यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स एक्चुअली। सो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग। एब्सोल्युटली ऑलवेज लर्न। बट लर्निंग का भी शरीर पे एक माइंडसेट है लोगों का। Some people don't want to learn from the things because they have the attitude and ego in them. I always teach my students, keep your ego and attitude aside if you want to learn something. Do you agree with it? टोटली टोटली, लाइक अगर लर्निंग का मैं यही एक सिंपल सी बात कहूंगा कि मेरी आई एम 38, आई एम स्टिल लर्निंग। ठीक है, क्योंकि अगर जिस दिन मेरी लर्निंग बंद हो जाएगी, द डे आई विल बी डेड आई गेस, क्योंकि वो Absolutely. मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा ना, क्योंकि इस फील्ड में, इन एवरी फील्ड, क्योंकि इट्स अपडेटिंग डे बाय डे। अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगा उस हिसाब से, आई वुड बी आउटडेटेड। सो मुझे कोई नहीं रखेगा। ठीक है, जो भी मैं अगर उस चीज में एक्सेल करना चाह रहा हूँ या उस लेवल तक पहुंचना चाह रहा हूँ जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, यू हैव टू कीप लर्निंग एक्चुअली। Yeah, keep learning and keep updated. बिल्कुल, लर्निंग कीप्स यू अपडेटेड एक्चुअली। शरियर भाई, आपको वेंचर के अपने 14 साल के एक्सपीरियंस के अंदर आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी फेलर्स आए होंगे। व्हाट इज द वन बिगेस्ट फेलर दैट यू काउंट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ एंड व्हाट वाज लेसन लर्नड, और आपने उसे कैसे रिकवर किया? डू शेयर विद अस। देखिए, जो जॉब वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें तो जॉब वाली जो चीज थी उसमें तो खैर इतने फेलियर्स नहीं है, लेकिन जो मेरा अपना, हम लोगों ने एक दोस्तों ने मिलकर कुछ वेंचर शुरू किया था, उसमें हमारा सबसे बड़ा फेलियर यही था कि वी डिडंट इवन लॉन्च एक्चुअली। हम परफेक्शन की तरफ जाते रहे कि ठीक है जी, हमें ये चीज को और हद तक रिफाइन करना चाहिए, इसको लॉन्च नहीं करना चाहिए, इसमें ये भी फीचर्स डालना चाहिए, ये भी डालना चाहिए, वी शुड हैव लॉन्च दैट थिंग। सो वो बहुत। सबसे बड़ी हमारी जो बिगेस्ट मिस्टेक थी कि आपको इतना परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं होती स्टार्ट में। ठीक है, जो भी चीजें आ रही हैं आपको, ऑब्वियसली आप जितनी भी बड़ी बड़ी एप्स है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज चल रही है, उनका फेज वन अगर आप शुरू के फेजेस देखें, वो बहुत ही जो, लेकिन इवन फेसबुक की वेबसाइट उसमें इतने बग्स और ग्लिचेस थे शुरू में, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप पहले दिन से नहीं कर सकते। आपको जस्ट जो भी आपके पास चीजें, इफ इट्स वर्किंग कंडीशन में लेकर आए, उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो बाकी आप उसके काम करते रहे, अपने साइड उससे अर्न करते रहे अगर पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, आप अर्न करते रहे, अगर आप टीम हायर कर लेंगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो द बिगेस्ट थिंग है कि जो आपके पास है, क्योंकि एक कंपनी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, उनके साथ भी यही हुआ था कि उन्होंने अपना फेज वन इवन लॉन्च कर दिया था। उनके पास बड़े सारे जी लोग आ गए थे, उनके विजिटर्स थे जो रिकरिंग बेसिस पे थे, मैं नाम नहीं लूंगा एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने उसको बंद करके फिर अपना फेज टू करना शुरू किया कि ठीक है यार, ये इसमें कुछ मसले हैं, हम इसको बंद कर देते हैं अभी, और जो है ना अपना जो सेकंड लॉन्च पे काम करते हैं। जो उन्होंने सेकंड लॉन्च की तरफ गए, फेज वन बंद किया, तो उनके जितने भी उनके जो यूजर्स थे, विजिटर्स थे उनके, वो सारे के सारे वो लूज कर गए। करनी थी, पहले के पैसा खर्च कर चुके थे, वो उनको दोबारा से करना पड़ता, सारी चीजें थी। तो अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट सर्वाइव, तो उन्हें वो बिजनेस ही बंद करना पड़ गया था। उनको दे लॉस्ट ऑल द मार्केट। एब्सोल्युटली। अपना ये भी एक काफी डीप पॉइंट है एंड आई ट्रूली एग्री विद इट कि इतना डीप ना जाएं बिल्कुल, चीजों के अंदर, जो है उसमें स्टार्ट कर दें।
जबरदस्त। शहरियार भाई, who was your inspiration in digital marketing journey? जी जी। या मैं दो लोगों को बड़ा मैंने फॉलो किया है, एक अविनाश कौशिक और एक नील पटेल। तो इन दो लोगों से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और इन लोगों को मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किया है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जब भी मैंने इन्हीं के सबसे ज्यादा ब्लॉग्स पढ़े शुरू में, जो भी मैं काम करता था, तो इनकी मैंने चीजें ज्यादा पढ़ी। इन दो लोगों से फॉर्चुनेटली लाइक दोनों बड़े अच्छे लोग हैं मतलब अपनी फील्ड के। तो इन दोनों को जबरदस्त। मैं सबसे ज्यादा इन लोगों ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है। Right, yeah. Jabardast, mashallah. And Neil Patel, I also listen to बिल्कुल that person. He's an amazing guy. बिल्कुल बिल्कुल। ट्राई अविनाश अविनाश कौशिक एज वेल, ही वर्क्स इन गूगल, आई गेस स्टिल वर्क्स इन गूगल। मुझे बल्कि एक दफा मेरे साथ कुछ मिस्टेक भी हुई थी, मैं उनका ब्लॉग फॉलो करता था, तो मैंने एक दफा उनसे बात मतलब एक तरह से उनको कमेंट किया, तो ही रिप्लाइड टू मी एज वेल। So you're a उन्होंने मुझे golden मेरी guy, मिस्टेक बताई थी कि mashallah. मैंने क्या गलती की है। Jabardast, mashallah. Have the people जो अभी आपको देख रहे हैं, how can they support you, शहरियार भाई? How can they support me? Like by spreading whatever they are learning, ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हो उसको अपने तक ना रखें। अगर दे इफ दे हैव लर्न समथिंग, स्प्रेड इट, ठीक है ना, उसको फैलाएं, आगे लोगों को सिखाएं उस चीज को। ठीक है, मतलब वो इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो उससे पैसे कमाना चाहते हैं या फ्री में सिखाना चाहते हैं। बट जो भी इफ दे हैव लर्न समथिंग न्यू, या जो भी चीज वो कर चुके हैं, जिस फेजेस से वो गुजर चुके हैं, जो पाकिस्तान में सबसे जो बुरी चीज है थोड़ी सी कह लें हमारी सोसाइटी में, ये कि हम चाहते हैं कि अगर हम एक चीज इन्वेंट कर चुके हैं ना, तो अगला वो इन्वेंट करे और फिर जो आगे जाए। हम उसको अपनी इन्वेंशन नहीं देंगे, ठीक है तुम इसकी मदद इस पे चढ़ के अगली चीज को इन्वेंट करो ना, सेकंड फेज पे बिल्कुल। जाओ। वो कहते हैं नहीं तुम पहले ये इन्वेंट करो, फिर जो है तुम दूसरी की तरफ जाना, क्योंकि मैंने किया, मैं तुम्हें क्यों दूंगा। तो इस बिल्कुल। चीजों से अगर हम निकल आए थोड़ा सा और इन चीजों पे हम उसकी आगे मदद करें और अपनी चीज को दें, तो ऑब्वियसली देन वी विल बिकम अ प्रोग्रेसिव थिंग, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, कि हम आगे से आगे इन्वेंट कर सकेंगे। अगर हम उसको वो री इन्वेंट द व्हील ही करते रहेंगे सारा साल के, जब हम उस चीज को बनाते रहेंगे कि हर बंदे को फेज 1 से ही शुरू करना है rather than फेज 2 3 4 से, तो प्रॉब्लम है इसके उसका टाइम कंज्यूमिंग है, वो उसको शुरू से सारी चीजें कर। तो अब जो भी आप काम कर रहे हो किसी भी फील्ड से, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी है, आपके जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, जो आपको पता है, जो उसको नहीं आता, हेल्प देम, उनके हेल्प साथ करते हैं, मदद, बिल्कुल। उनकी मदद करें। बिल्कुल, ताकि वो भी चीज सीख सकें उनको, और हो सकता है उन्हें कुछ नई चीज आती हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे, मेरे साथ बहुत दफा होता है कि मैं बहुत सारी मैंने चीजें जो सीखी हूँ, बहुत सारे अपने जो सबॉर्डिनेट्स और जो मेरे साथ लड़के काम करते थे, मैंने उनसे सीखी है। ठीक है, उन्हें बहुत सारी ऑब्वियसली उनके पास भी कुछ नॉलेज है, कुछ मेरे पास है। सो अगर जब तक हम उसको कोलैबोरेट या कंबाइन नहीं करेंगे एक जगह पे, हम उसको सारी स्किल्स हम नहीं वो कर सकते। हम अगर हम वो अपनी चीज मुझे ना बताएं और मैं अपनी चीज उन्हें ना बताऊं, फायदा नहीं है ना, क्योंकि नॉलेज शुड बी लाइक ट्रांसफरेबल। तो इस तरह से हमें बिल्कुल। लोगों की मदद करनी चाहिए। Absolutely. And one thing I want to add here, पाकिस्तान के अंदर आपने भी नोटिस किया होगा शहरियार भाई, जब लोग चीज़ें बता भी देते हैं किसी को, तो सो दे मेक इट दिस मच डिफिकल्ट कि वो शुरू करने से पहले ही डर जाता है कि तो इतना टफ चीज़ है। डोंट मेक द थिंग्स डिफिकल्ट टू फॉर अदर्स। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। लाइक आप हेल्प करने के मकसद से बतानी चाहिए, सॉरी मैं मुझे ऐड करना चाहिए था, rather than कि डराने के मकसद से। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि उस बंदे को जो भी बात बताएं उसकी हेल्प करने के मकसद हेल्प से, कि करें। उसको इनकरेज करने के मकसद से बताएं, rather than कि डिस्करेज करने के, हाँ मैं ये कर चुका तो नहीं नहीं इस तरफ मत जाना, इधर तो ये। ज्यादातर लोग यही कहते हैं। एब्सोल्युटली यू आर स्पॉट ऑन एक्चुअली। सो शहरियार भाई, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, व्हाट आर द टिप्स यू वांट टू गिव टू देम? यार फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी पैशनेट। अगर आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हो ना, कि सिर्फ आपको जी रातों रात आना है, मैं जॉब में उसमें इतने पैसे थे, इसमें कभी भी मत आना, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था कि मैं 14 साल बाद कहाँ आऊंगा, क्या करूंगा। मुझे जब मैंने बताया ना अपने साथ शेयर किया अपना पहला इंसिडेंट, तो मुझे चीज मजे की लगी थी, जो मैं पढ़ा वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसने मुझे इंट्री किया कि ठीक है जी आगे जाके मैं ये काम करूं। तो जो भी आप करें यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल पार्क व्हील्स की है। ठीक है, कि उन लोगों ने अपने जो उनको पसंद थी उस चीज को पैशन बनाया, उस चीज को किया, चेक देम कि वो आज कहाँ से कहाँ पर है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको अगर किसी चीज में एक्सेल करना है ना, तो आप वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ पाकिस्तान में भी, जिन्होंने वही काम किया जिसको वो करना चाहते थे, एंड दे आर वे फेमस एक्चुअली। तो वो आप अगर तो आप इस चीज में आना चाहते हैं, रेडिट बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है।
फ्री फ्री अवेलेबल है, कोई पैसे देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। उर्दू में भी है, अगर अंग्रेजी का मसला है उर्दू में भी अवेलेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। वहां से सीखे। मीनवाइल अब हाँ, ये एक मैं जरूर कहूंगा कि ठीक है आपको इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों में आपको बड़ी हेल्प रहती है, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है वो आपको बड़ी मैटर करती है बाकी चीजों में। तो आप उसको मतलब कुछ भी कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन स्किल पर जरूर अपनी इंप्रूव करें, ठीक है ना। बाकी आप जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाहते हैं, फिर आप अपनी जितनी मैं आपको बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, मॉस की एसईओ गाइड अवेलेबल है, इवन नील पटेल की एसईओ गाइड अवेलेबल है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की उसके डिफरेंट, आप उसके अगर ब्लॉग फॉलो करें, उसके बहुत सारी गाइडेंस वो अपडेट करता रहता है डेली बेसिस में। सर ये बहुत सारे सर्च इंजन जर्नल है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, ठीक है। और बहुत सारी इस तरह की, अगर आप पीपीसी को फॉलो फॉलो वो करना चाह रहे हैं तो एक और वर्ड स्ट्रीम है, मुझे थोड़ा सा मैं नाम बोल रहा हूँ, तो वो एक कंपनी है, उनका ब्लॉग बहुत अच्छी रिसोर्स है। तो नो नीड टू पे एनीवन। अगर फिर भी आप आपको लगता है कि आप नहीं सीख पाते, ऑनलाइन कुछ लोगों का मसला होता है वो नहीं कर पाते, ठीक है, पर आपको किसी इंस्टीट्यूट ही जाना है तो खैर मुझे पाकिस्तान में इतने इंस्टीट्यूट्स का नहीं पता कि कौन कौन करा रहा है, लेकिन आपके पुराने मैंने एक वीडियो से देखा था कि वो एक इंस्टीट्यूट है वो करा रहा है, तो वो अगर क्या गुड, डेफिनेटली गो फॉर देम। बिल्कुल, लेकिन पैशनेट, इफ यू आर पैशनेट एल्स यू विल बी वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम एज वेल। मे बी पैसे आप दोबारा कमा लेंगे, टाइम वापस नहीं आ सकता। टाइम वापस नहीं आ सकता, एब्सोल्युटली। और इसके अंदर बहुत सारी टिप्स माशाल्लाह आपने शेयर कर दी है, एंड दे आर रियली वैल्यूएबल, seriously. And I'm doing this show, I'm doing it for my selfish reason as well, because I'm also learning from Shahryar bhai, so I'm also a student. वो वो बिल्कुल ऐसे, मैं आई एम लर्निंग फ्रॉम यू एक्चुअली। मैं बिफोर कमिंग टू दिस शो आई वाज थिंकिंग या वाओ दैट्स अ गुड आइडिया, कि आई वुड बी शेयरिंग दैट विद माय फॉलोअर्स, एंड यू विल बी हैविंग मोर फॉलोअर्स विद दैट थिंग, कि ठीक है उनको आपके शो पे। आई वाज थिंकिंग या आई नो मोर पीपल, सो ये तो मैं भी कर सकता हूं, सो आई हैव लर्न दैट थिंग फ्रॉम यू। सो अगेन एज अ सेड के ऐसा नहीं है कि लर्निंग इज नॉट अ वन वे थिंग, सो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम यू एक्चुअली। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने ही मुझसे सीखा, मैंने भी आपसे सीखा। So it's a two-way thing. It's always whatever, it's a failure, anything, it's a two-way thing. You'll be learning something. बिल्कुल, it's a, give and take. You give your golden content, not the, silly or small content. You will your golden content, and you will get the golden content Absolutely, in return. absolutely, बिल्कुल. So, Shahryar bhai, absolutely. who बिल्कुल is ऐसे। your ideal target market in digital marketing world? या इट डिपेंड्स के आपकी नीश क्या है। एट द मोमेंट मैं तो डिफरेंट कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी टारगेट ऑडियंस एट द मोमेंट द डेवलपर्स या सीटीओ सीआईओ, ठीक है। अगर मैं इससे पहले मैं जिस कंपनी के साथ काम करता था, उनकी टारगेट ऑडियंस वाज रेजिडेंशियल कस्टमर्स, ठीक है, इनको टीवी इंटरनेट व्हाटएवर दे वर सेलिंग। तो टारगेट ऑडियंस चेंज होती है हमेशा। इट डिपेंड्स कि आप बेच क्या रहे हैं, आपकी सर्विसेज क्या है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी नीड या जरूरत किन लोगों को है। तो जो भी आपके लेट सपोज कि मैं अगर कोई जूते बेचता हूँ, तो मे बी मैं अगर स्कूल शूज बेच रहा हूँ, तो ठीक है जी, स्कूल गोइंग बच्चों को मेरी जूतों की जरूरत है, तो वो मेरी टारगेट ऑडियंस हो जाएगी। या उनके जो भी जिन लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, या तो उनके अम्मा अब्बा भी टारगेट ऑडियंस में आ जाएंगे, तो खरीद के तो उन्होंने नहीं देना है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफाइंड होता है। तो वो बिल्कुल टारगेट ऑडियंस, इट्स डिपेंड्स ऑन के आपकी सर्विसेज क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट के नौयत की है एक्चुअली। सो वो बिल्कुल इस तरह से तो टारगेट ऑडियंस हमेशा चेंज होती रहती है। इट्स नॉट ऑलवेज द सेम एक्चुअली, इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस और योर सर्विसेज। बिल्कुल। ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, शहरियार भाई, पाकिस्तान के अंदर 14 साल आपको डिजिटल मार्केटिंग में गुजारे हैं, और आज भी आप आज की यंग जनरेशन में स्पेशली देखते हैं, दे आर मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड ब्लेमिंग्स, दे आर नॉट डूइंग द थिंग्स। जो एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज लेके आते हैं कि भाई मैं एक मार्केटर तो हूँ, बट मुझे एक वेंचर करने के लिए कैपिटल चाहिए। हाउ डू यू केटर सच पीपल? अच्छा, मैं इस चीज में कैपिटल तो थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली चाहिए इन द स्टार्ट, लेकिन अगर आप इन अ सेंस, मैं कुछ चीजों को बड़े अच्छे से करता हूँ, मैं बस कुछ आइडियाज हैं जिनमें काम करना, लेकिन आई एम नॉट दैट टेक्निकल एक्चुअली, ठीक है। तो मैं मे बी मैं वेबसाइट बना सकता हूँ इस तरह की, लेकिन मैं एक मोबाइल ऐप नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो बिल्कुल, बहुत साफ आपको चीजें बताता हूँ। तो ठीक है, आपको जरूरी नहीं है, अगर मेरे पास, मैं बहुत लोगों के पास है, ठीक है जी, मोबाइल ऐप सी मेरे पास, ठीक है, उनको देने के पैसे नहीं है, बिल्कुल कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है कि इतना बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, सही है।
तो आपको अगर आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है, आपके पास आइडिया आपका बहुत अच्छा है, ठीक है आपके, और अगर ठीक है कैपिटल नहीं भी है तो बहुत सारे इस तरह के आपके पास अगर आप चले जाएं तो ये नस्ट आयो है, इससे पहले फाउंडर स्कूल भी था, क्या गेस वो बंद हो चुका है। तो और एनडी में भी एक है, वो भी बड़ा मशहूर है, गेस मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो इस तरह के आपके पास डिफरेंट अब ये इस तरह की चीजें खुल चुकी हैं। ये मैं एक्सक्लूसिवली क्या कहते हैं इसको, इंक्यूबेशन, एक्चुअली इंक्यूबेशन आपके पास डिफरेंट खुल चुके हैं। तो आप वहां जाएं, अपना आइडिया पेश करें, वहीं पे टीम बनाएं, इस तरह की चीजें बहुत सारी हो रही है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना बड़ा मसला है। सही है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल भी है, ठीक है, आपको रनिंग एक प्रोटोटाइप किस्म का बना लें, ठीक है, उसका वर्किंग प्रोटोटाइप जो भी आप मॉडल बनाना चाह रहे हैं, जो भी आपकी सर्विस से प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसको किसी वेंचर कैपिटल को पिच करें। इफ ही इज इंटरेस्टेड वो आपको बताएगा, उनके कुछ सवाल होते हैं, आप उसकी तैयारी करें, इस तरह की चीजें। और अगर आप ठीक है पास कर जाते हैं तो वो आपको फंडिंग कर देते हैं उस चीज में, जो भी वो सीरीज की फंडिंग होगी वो आपको बिल्कुल बताएंगे। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, इट्स नॉट ऑलवेज देयर। अगर दैट अगर आपके पास कम भी है तो आप उसको वर्किंग प्रोटोटाइप बना के आप किसी वेंचर कैपिटल के पास, लेकिन हाँ अगर आपको खुद से करना है, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास नहीं जाना है, किसी इंक्यूबेशन में भी नहीं जाना, देन या पॉसिबल कि आपको उसके लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा शरियर भाई, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सेल्फ अपने आप वेंचर्स खड़े कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग, देयर आर सो मेनी सर्विस मॉडल्स जो आप खुद अपने घर वालों के साथ मिलके खड़े कर सकते हैं। लेट मी शेयर विथ यू बिल्कुल। आवर I've run a brand name that's Buyers Hub, and let me share. I started with my mother, my father, and brother. Those were my team members. बिल्कुल है, I started for बिल्कुल ऐसे ही है। 1 लाख से अपने मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। बहुत आराम से हो सकता है। इवन लाइक आप यू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप फूड पांडा पे जाओ, अगर आप लोगों को देखो, लोग घर का खाना बेच रहे हैं, बिल्कुल। उनको हाउस वाइफ्स हैं दे आर, ठीक है, उनको पता ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। दे आर हाउस वाइफ्स, दे आर सेलिंग देयर लाइक होममेड होम कुक फूड एक्चुअली, ठीक है, इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं। फिर लाइक मैं अगर आप दराज पर जाओ, वहां पे एक तारिक रोड पे एक बड़ा मशहूर जो है वो खुस्से वाला, या वो जो वो चप्पल होती है, क्या खेड़ियां कहलाती हैं, इस तरह की चीजें वो बिल्कुल बेचता था, खेड़ी। वो आज दराज पे है, ठीक है। आप इस तरह की बहुत सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं कि दे आर गोइंग डिजिटल एक्चुअली। वो अगर जो वो होम कुक फूड था, पहले उनको ऑफिस के धक्के खाने पड़ते थे जी, वहां जाके उनको लीफलेट देना पड़ता था कि ठीक है जी मैं ये बेचती हूँ, इस तरह की। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वो फूड पैंडा पर जाती हैं, अपना चीज बनाती हैं, जो भी चीजें वो बेचती हैं, खाना के जो भी डिशेज हैं वो ऐड करती हैं, उनको ऑर्डर्स आते हैं, वहां से बेच देती हैं। बिल्कुल। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आनी चाहिए, अब तो इतना आसान है, आप जो भी चीज कर रहे हैं आपको वो भी जरूरत नहीं है, मतलब आपका कोई एक पैसा नहीं लग रहा उन चीजों पे। हाँ ये चीज है। अब थोड़ा सा चीजों को शहरियर भाई लोगों के लिए खोल देते हैं। अब फूड पांडा की आपने एग्जांपल दी। फूड पांडा इज गिविंग अ सर्विस टू द पीपल। आपके पास एक्सपर्टाइज है, आपको खाना बनाना आता है, आपको बिस्किट बनाने आते हैं, कुकीज बनानी है, एनीथिंग यू नो, you they provide you a platform, and they are giving you a service, and for that service they are charging you for it a little amount from each order, and you are बिल्कुल, also earning out of it. क्योंकि उनकी ऑडियंस डेवलप है, क्योंकि बिल्कुल। उनकी एक ऑडियंस है डेवलप ना, कि उनके डेली के जो उनके लाखों में या मिलियंस में विजिटर्स हैं। बिल्कुल। आपके पास वो मिलियंस विजिटर्स नहीं आ सकते ना एक दिन में आपको, तो वो जो भी उनके विजिटर्स हैं उनको आपकी चीज पहुंचा रहे हैं, तो वो उसके डेफिनेटली वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे। और लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आपको उन मिलियन विजिटर्स तक पहुंचने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता। अगर बिल्कुल। आप दराज में जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आप देखें पेप्सी को, ये इन सबके ऑफिशियल स्टोर्स तक हैं दराज में, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि उनका एक सर्टेन लेवल है कि वो पूरा जी नेशन वाइड वो डिलीवर करती हैं चीजें, या इस तरह के हैं उनकी अपनी लाइक मिलियंस में उनके डेली विजिटर्स हैं इस तरह से। तो अगर आप चीजें देखें तो आपको केटर करिए, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करिए, अगर आप इसके अगेंस्ट आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं, तो आप ये देखें ना कि वो आपको वो चीज खुद से करने में आपको कितना टाइम लगना था, तो वो बिल्कुल। बिल्कुल एक रीजनेबल है। बिल्कुल जबरदस्त। शहरियार भाई, जो लोग आपकी तरह डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, वो क्या ऐसी हैबिट्स हैं उनको अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करें और आपकी तरह डिजिटल मार्केटर बन सकते या मुझसे बेहतर बने कि वो मेरी तरह क्यों बनना चाहते हैं, मुझसे आप मुझसे बहुत बेहतर बने। तो क्योंकि आप तो बहुत चीजें आसान है, क्योंकि आपके पास आपका इंटरनेट इज वे फास्टर, ठीक है, आप ब्लॉग्स आर इजीली अवेलेबल, यूट्यूब बहुत, हमारे जमाने में तो
मतलब डायल अप कनेक्शन होता था, वीडियो देखने में बफर करने में अच्छा खासा टाइम लगता था उसको, ये बहुत बाद में आई बेहतर इंटरनेट कनेक्शंस। तो अब तो बहुत अच्छी रिसोर्सेज बहुत आराम से पड़ी है, इवन फ्री कोर्सेज तक है एमआईटी और बाकी यूनिवर्सिटीज के, अगर आप यूडेमी, कौरसेरा और बाकी जगहों पर जाए फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। सो अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर पैशनेट, like that's a huge world waiting for you outside, like on the internet, to explore that thing. बिल्कुल, लाइक मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, आई गेस। तो आई एम अ वेरी लो की और लो प्रोफाइल पर्सन, सो you can be way better and way above my league, actually you can be way better than myself Nevertheless. So, because you have more options actually. absolutely wonderful. I want to add something here at the end is do read articles, do some research, and listen to the people. और जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं, बिल्कुल टॉक टू द पीपल, उस डोमेन के लोगों से मिलना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेटवर्किंग का भी थोड़ा सा, नेटवर्किंग अपनी जरूर इनहेंस करें, लाइक उस, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस फील्ड के लोगों से मिलें, जो भी नेटवर्किंग इवेंट्स आपके इलाके में, लाइक आपके शहर में हो रहे हैं, उन लोगों से रिलेटेड, या जो बॉडीज हैं अगर उस फील्ड से रिलेटेड वो इवेंट्स करा रही है, उनको अटेंड करें। उससे आपको लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा, और आपको उससे बिजनेस भी मिलेगा। पाकिस्तान में बिजनेस नॉर्मली बहुत सारे लोग इसी तरह से भी गेन करते हैं कि वो दे नेटवर्क टू अदर पीपल, दे नेटवर्क विद अदर पीपल एक्चुअली, उनसे मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं कि जी ठीक है, मैं ये इस तरह से वेबसाइट बनवानी है, वो बंदा आके वो कहता है हाँ यार मैं तो यही काम करता हूँ, वाओ यू कैन डू दैट यार, ठीक है मैं तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो हाँ बिल्कुल लोगों से मिले, जो आपकी बॉडीज इवेंट इस तरह के कराती हैं आपके शहरों में, उनमें जाए, उनसे हेल्प लें, बहुत सारे मेंटोर्स अवेलेबल हैं डेफिनेटली। लाइक एज अ सेड के इट्स वे टू इजी, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस यू नीड टू एक्सप्लोर इट राइटली एक्चुअली, कि आप किन लोगों से मिल रहे हैं, किन चीजों को देख रहे हैं, वो आपको सिर्फ देखना है कि वो चीज सही है या गलत है, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। absolutely wonderful. Acha, let's come to the last moments of the show. What will you say about State of the Union for e-commerce when I'm not there? Yeah, to be very honest, it's a very good show. Like as I said, I have learned something, और लोगों के लिए बड़े, मतलब आप अगर लोगों को जो आपका शो देखते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, ठीक है, अगर आप उन लोगों को आप मिलवा रहे हैं दूसरे बहुत सारे लोगों से जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल कर रहे हैं आप लोगों की, इस तरह से अगर आप देखा जाए तो यू आर लाइक बीइंग अ मेंटर टू देम एक्चुअली, आप उनके मसले हल कर रहे हैं, आप उनको सीखने को बहुत कुछ आप दे रहे हैं उन चीजों को, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो मैं तो आई एम एज आई सेड दैट आई हैव लर्न, लाइक मुझे बड़ा कुछ सीखने का मिला, मौका मिला इस चीज से, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब एक्चुअली, Thank you so much. Means a lot. सो kudos। Thank you. So, what will you say as the final word? हाँ बस मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं यही कहूंगा कि जो लाइक जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं आप, कोई भी फील्ड हो, किसी भी जगह पर किसी भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, अगर तो आपका पैशन है तो करें, ठीक है ना, वट एवर यू पैशनेट अबाउट डू दैट थिंग, ठीक है, क्योंकि आप उसी चीज में एक्सेल करेंगे जिसको आप दिल से करेंगे, जो आप दिल से नहीं करेंगे उस चीज में आप कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते। तो आपका जो जिस चीज के बारे में आप पैशनेट है, आप हमेशा वो काम करें, मतलब इट्स नॉट कि आप किसी के कहने में आके जबरदस्ती, क्योंकि आप खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप वो काम भी नहीं कर सकते। तो जो भी काम करना चाहें आप, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे कुछ और हो, अगर आपको पसंद है आप वो करें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को देख के कभी कुछ ना करें, तो इस तरह से, क्योंकि मे बी दैट पर्सन इज गुड एट दैट थिंग, आप ना उस चीज में उतने अच्छे। Thank you so much. It was a wonderful experience talking to you on मार्केट the show. And that's all. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मार्केट दिस इज ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नेक्स्ट किसी खासूसी मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।